जय भारत। मैं निशा मिश्रा नायक वन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को नेशनल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। श्रमिकों में फैली खुशी की लहर। राष्ट्रीय मूल निवासी कर्मचारी संघ की ओर से कैंटीनल कंपनी म्यूनिसिपालिटी खोपटे तालुका में 5 दिन की हड़ताल के बाद श्रमिकों को मिली भारी वेतन की वृद्धि। राष्ट्रीय मूल निवासी कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ रायगढ़ आजाद समाज पार्टी के लोगों ने बसपा के झंडे पर माननीय मायावती के फोटो के साथ साथ महापुरुषों के फोटो को भी जला डाला, किया महापुरुषों का अपमान। हाथ रखे बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए गैंगरेप, हत्या और यूपी में हो रहे महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार के मुद्दों को लेकर संपूर्ण भारत में बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा 550 जिलों में देशव्यापी धरना और आंदोलन। फांसी दो, फांसी दो। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। मूल निवासी का नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासी का नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासी का नारा है, भारत देश हमारा है। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। गुंडाशाही नहीं चलेगी, गुंडाशाही नहीं चलेगी। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गुंडाशाही सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार हमसे डरती है। पुलिस को आगे करती है, सरकार हमसे डरती है। पुलिस को आगे करती है। सरकार हमसे डरती है, सरकार हमसे डरती है। पुलिस को आगे करती है, सरकार हमसे डरती है। પોતાનું દેહનું પણ બલિદાન આપી દેવું છે એવા તમામ સંતો અને ભક્તોને મૂળ નિવાસી સમાજના મહાપુરુષોને કોટી કોટી વંદન। હાલના વર્તમાન સમયમાં જે નિકમ્મી ભાજપની સરકાર દ્વારા જે મા અને બેન દીકરીઓ સાથે નાની નાની જે નાબાલિગ બાળકો સાથે રેપની જાહેરમાં પ્રકારે છે અને ये मोदी तेरी नालायकी अब नहीं चलेगी। जे पण लोको अन्याय અને અત્યાચારના વિરોધમાં આખા દેશભરમાં बहुजन क्रांति मोर्चाના રાષ્ટ્રીય સંયોજક વામન મેસરામ સાહેબ દ્વારા 550 જિલ્લા અને તાલુકાઓમાં એક સાથે 8 ઓક્ટોબર 2020 ના રોજ તમામ જિલ્લા અને તાલુકામાં એક સાથે ધરણા પ્રદર્શનનું આયોજન કર્યું છે। તે પહેલા 3 તારીખે દરેક ઉત્તર પ્રદેશના 75 જિલ્લામાં એક સાથે એક દિવસે આખા ઉત્તર પ્રદેશના 75 જિલ્લામાં એક સાથે ધરણા પ્રદર્શનનું આયોજન કરે। એ પછી બીજા ચરણમાં તમામ જિલ્લા 550 જિલ્લાઓમાં ભારતના આખા દેશમાં 8 તારીખે એક સાથે એક સમયે 550
કચેરીએ આવીને પત્ર આપવામાં આવ્યા છે. એ પણ જો ન્યાય નહીં મળે તો આવનારા સમયમાં બીજા ચરણમાં 15 તારીખે આખા દેશભરમાં એક સાથે 1 તારીખે રેલી કરવામાં આવશે અને એ પછી પણ જો ન્યાય નહીં મળે તો યુપીમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં જે ઘટના બને છે વારંવાર ત્યાં અન્ય જિલ્લામાં ત્યાં નાની નાની છોકરીઓ સાથે રેપ થાય છે તો આવા રેપિસ્ટોને જાહેરમાં જેવી રીતે દુબઈમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાનું પાલન થાય છે રીતે જાહેરમાં ફાંસીના માંડલા પર આ લોકોને જાહેરમાં સજા આપવી જોઈએ જેથી કરી આવનારા લોકો આવી જનન્ય કૃત્ય અપરાધ કરતા સખત વિચાર કરે પોતાના મગજમાં આવા ફરવા રાજમાં ભાજપની સરકાર એક નંબર નબે અને નિકમ્મી છે તો જાહેરમાં ને જ્યાં જનતા દ્વારા જનતા જનાદર છે જનતા ન્યાય કરવાનો છે કે આવનારા સમયમાં આ ભાજપના ભડવાઓ જે આપણી મા બહેન બેટીઓ સાથે જાહેરમાં રેપ કરે છે છતાં એની લાશ પણ એના પરિવારને આપવામાં નથી આવતી તો આવા લોકોને જાહેરમાં ફટકારો પોલીસ અને પ્રશાસન દ્વારા ત્યાં લોકોને અડધી રાતે એની લાશ સળગાવી દેવામાં આવે છે એની જીભ કાપી નાખવામાં આવે છે બેનની અને એના કરોડજી પર માર દેવામાં આવે છે અને પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા 144 કેસ કલમ લાગુ કરવા દ્વારા ત્યાં जर्नलिज्म पत्रकार मीडिया समर्थनामध्ये जयभर आंदोलनाचा घोषणा केलेली आहे. साथियो, या भारतामध्ये बहुजनावरती अन्याय वाढलेला आहे आणि बहुजन समाजातील जो अन्याय वाढलेला आहे SC, OBC, NT, JNT, DNT, कन्व्हर्टेड जे आपले भाऊ आहेत हा जो अन्याय वाढलेला आहे हा अन्याय आपला थांबवायचा आहे आणि हा अन्याय आपल्या थांबवण्यासाठी आपल्याला सर्वांना एकत्र येणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी या देशाचा जो बहुजन समाज 25% बहुजन समाज जो आहे हा बहुजन समाज हत्यारा समाज অত্যাচার হচ্ছে তার বিরোধ করতে পারতো না। আজ যে মহিলারা মাথা উঁচু করে রাস্তায় চলছে তার অবদান হলো ভারতীয় সংবিধান। তো ভারতীয় সংবিধানকে আজ অপপ্রচার অপব্যবহার করছে কিছু মনুবাদী লোক। তো সাথী আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে আজ যে এই হতরস কাণ্ডের যে মনীষার বলৎকারী রূপে যে আরোপীরা আছেন সে আরোপীদেরকে সমর্থন দিচ্ছে এমনও লোক আছে। তো আমরা যদি মহিলা যে অত্যাচারিত হয়েছে তার সমর্থনে র্যালি ধর্ণা প্রদর্শন করি তাহলে যে আরোপী সে আরোপীরা ফাঁসি পাবে এবং তারা ফাঁসি হলে অন্য লোক যারা মহিলাদের উপর গলত নজর রাখে যারা মহিলাদেরকে গলত নজরে দেখে তারা এই জিনিসটার একটা শিক্ষা পাবে। তাই সাথী আমরা মিডিয়াতে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখছি যে সামাজিক সংগঠন ছোট ছোট সংগঠন রাজনীতি দলের লোকরা তারা মনীষা যাতে ন্যায় পায় তার জন্য র্যালি করছে প্রোটেস্ট করছে মোমবাতি মিছিল বার করছে। তো সাথী আমার বলা উদ্দেশ্য তারা কি ডিএম SDM এর কাছে লিখিতভাবে এই দোষী যারা সেই দোষীদের ফাঁসি যাতে হয় তার জন্য কি তারা লড়াই করছে? লড়াই করেনি। শুধুমাত্র দেশব্যাপী এই বহুজন ক্রান্তি মোর্চায় যাতে মনীষা ন্যায় পাওয়া যায় যাতে মনীষার হত্যাকারীদের ফাঁসি হয় তার কারণের জন্য 550টি জেলাতে ধর্ণা প্রদর্শন শুরু করেছে। সাথী আমাদেরকে এটা ভেবে নিতে হবে যে সংবিধান আমাদের সংবিধানে সবাইকার মৌলিক অধিকার আছে। SC, ST, OBC, মাইনরিটি কমিউনিটি এবং আদার্স কাস্ট যারা আছে তাদের সবাইকার মৌলিক অধিকার আছে। তো সাথী যদি কোনো অপর কাস্টের উপর অত্যাচার হচ্ছে তাহলে প্রশাসন নেতা তারা সবাই তাকে ন্যায় দেওয়ার জন্য সামনে আসছে, কিন্তু যখনই কোনো SC, ST, OBC এবং মাইনরিটি কমিউনিটিদের সমাজের মানুষের উপর অত্যাচার হয় তখন তারা কেন আসে না তাদের সমর্থনে? এটাই বুঝবার আছে সাথী। তাই সাথী আমরা বহুজন ক্রান্তি মোর্চা এবং রাষ্ট্রীয় মূল নিবাসী মহিলা সংঘের মাধ্যমে পুরো ভারতবর্ষে এই ধর্ণা প্রদর্শন চালাচ্ছি। সাথী
আমাদেরকে এই কথাটা ভেবে নিতে হবে যে ভারতবর্ষে যদি সংবিধান না থাকতো তাহলে আজকে আমাদের সমাজের মহিলারা মাথা উঁচু করে চলতে পারতো না। আমাদের সমাজের মহিলাদের শিক্ষা নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার, ডক্টর, প্রফেসর এইসব হওয়ার যোগ্যতা থাকতো না। তাই কিছু মনুবাদীরা চায় যে সংবিধান শেষ হয়ে যাক, আবার আমরা মনুস্মৃতিকে লাগু করব, আবার আমরা এই দেশের মহিলাকে অত্যাচার করে এই দেশের পুরুষদেরকে গোলাম বানাবার রাস্তাকে বেছে নেব। তাই সাথে আজ উত্তরপ্রদেশে ধর্ষণ হচ্ছে তা নয়, কিছুদিন আগে যখন আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় অন্যের সরকার ছিল তখন আমরা দেখেছি আমাদের পশ্চিমবাংলাও ধর্ষণ হয়েছে। তো এই ধর্ষণ শুধু আজকে হচ্ছে তা নয়, এই ধর্ষণ বিগত কয়েক বছর ধরে হয়ে আসছে। এই ধর্ষণকারী লোকদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য, এই ধর্ষণকারী লোকদেরকে জব্দ করার জন্য বহুজন ক্রান্তি মোর্চা এক বিশাল রূপ নিয়ে ভারতবর্ষে চরণবদ্ধ আন্দোলন শুরু করেছে। সাথী, আমাদেরকে এটা মানতে হবে যে ভারতবর্ষে যদি সংবিধান না থাকতো তাহলে আজকে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে ধর্ণা প্রদর্শন করতে পারতাম না। যদি ভারতবর্ষের সংবিধান না থাকতো তাহলে আমরা 19 নম্বর আর্টিকেল অনুযায়ী নিজের ওপর অত্যাচার যে হচ্ছে সেটার আওয়াজ তুলতে পারতাম না। তাই সাথে আমাদের উদ্দেশ্য ভারতের সংবিধানকে বাঁচানো, ভারতের সংবিধানকে সংবিধান মতন প্রতিষ্ঠিত করানো আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আর আমাদের যে সমস্ত সমর্থকরা এখানে এসেছেন তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ দেব যে তারা অনেক সময় নিজের কাজকে ছেড়ে ভারতবর্ষের এই মনীষাকে ন্যায় দেওয়ার জন্য এই ধর্ণা প্রদর্শনে এসেছে। সাথী, আমরা এমনও দেখতে পাচ্ছি যে হতরস গ্রামের আশেপাশে যে গ্রামগুলো রয়েছে সেই গ্রামগুলোর যে ঠাকুর জাতির লোক, যে শর্মা জাতির লোক, তারা একত্রিত হয়ে তারা বলছে যে আমাদের সমাজের ছেলেরা অন্যায় করেনি, আমাদের সমাজের ছেলেরা রেপ করেনি, আমাদের সমাজের ছেলেরা ধর্ষণ করেনি। তা কেন আজের কথা বলছে না? তারা এই জন্য বলছে না, পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে যখন মনীষার লাশকে রাতের অন্ধকারে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, সমস্ত প্রমাণকে শেষ করে দেওয়া হলো, তারপর সেই ব্রাহ্মণবাদী লোকরা নিজের ইচ্ছা মতো কথা বলছে, সমাজকে জানাচ্ছে যে আমাদের ছেলেরা কোনো অন্যায় করেনি, আমাদের ছেলেরা কোনো ধর্ষণ করেনি। সাথে আমাদের এসসি ওবিসি মানুষের শরীরে রক্ত নেই? আমাদের শরীরের রক্ত কি গরম হয় না? না আমাদের শরীরের রক্ত কি জল? আমরা জানি যে আমাদের শরীরে রক্ত আছে, তবে আমরা সংবিধানকে মেনে, সংবিধানের নিয়ম কানুনকে মেনে আমরা সমাজের লড়াই লড়ি। তাই সাথে আমরা এই শান্তিশিষ্টভাবে এই ধর্ণা প্রদর্শনকে চালিয়ে যাচ্ছি। সাথী, আমাদেরকে এটা ভালোভাবে বুঝতে হবে যে আমাদের সমাজের মহিলা, শুধু আমার নিজস্ব অর্ধাঙ্গিনীকে বাদ দিয়ে সমস্ত মহিলা, কেউ আমার থেকে ছোট আমার বোন, আমার থেকে যে বড় হবে সে আমার দিদি, আমার থেকে যে আরো বড় হবে সে হয় আমার কাকি, না হয় আমার মা। তো আমরা যদি আমাদের মহিলাদেরকে সসম্মান দিয়ে ভালো চোখে দেখি তাহলে আমাদের মহিলাদের উপর কোনো এরকম যে ঠাকুর সমাজের হোক কি অন্য সমাজের হোক তারা চোখ তুলে দেখতে পারবে না। তো তাই সাথী, আমি আমার এই বক্তব্যের মধ্যে আর বেশি কিছু বলবো না, শুধু এটাই বলবো যে সময় চলে এসেছে আমাদের এসসি এসটি ওবিসি এবং মাইনরিটি কমিউনিটি পুরুষ এবং মহিলাদেরকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই অত্যাচারী বলাৎকারী ব্রাহ্মণদের যাতে ফাঁসি হয় তার জন্য আওয়াজ তুলতে হবে, লড়াই লড়তে হবে। এবং অন্যবারও যদি কোনো মহিলার উপর, চাই ও মুসলিম সমাজের মহিলা হোক, या आदिवासी সমাজের মহিলা হোক, या খ্রিস্টান সমাজের মহিলা হোক, या শিডিউল কাস্টের সমাজের মহিলা হোক, আমাদের মূল নিবাসী মহিলার উপর অত্যাচার হলে আমরা রাস্তায় নামবো, আমরা আন্দোলন করব এবং আন্দোলন করে সেই অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া করাবো। এটাই আমাদের লক্ষ্য, এটাই আমাদের प्रतिज्ञा। जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। समर्थनामध्ये जेलभरो आंदोलनाचा घोषणा केलेली आहे। साथियो, या भारतामध्ये बहुजनावरती अन्याय वाढलेला आहे आणि बहुजन समाजातील जो अन्याय वाढलेला आहे, एसटी एसटी ओबीसी एनटी जेएनटी डीएनटी कन्व्हर्टेड जे आपले भाऊ आहेत, हा जो अन्याय वाढलेला आहे हा अन्याय आपला थांबवायचा आहे आणि हा अन्याय आपला थांबवण्यासाठी आपल्याला सर्वांना एकत्र येणं गरजेचं आहे। आणि त्यासाठी या देशाचा जो बहुजन समाज, 50% बहुजन समाज जो आहे हा बहुजन समाज हत्तेवरा समाज असताना काही मुठभर लोक आपल्यावरती अन्याय करत आहेत, तर तो अन्याय आपला थांबवायचा आहे आणि त्यासाठी आपल्याला हे आपलं आंदोलन चालू झालेलं आहे।
तर सर्व अंतिम संस्कार त्या ठिकाणी केले. अंतिम संस्कार करण्याची वेळ त्यांच्यावर का आली एवढ्या रात्री, याचे कारण आजपर्यंत कुणीच आम्हाला सांगू शकलं नाही. आणि हे कारण जेव्हा आम्हाला सांगतील, खरं म्हणजे मी या माध्यमातून छत्रपती क्रांती सेनेच्या माध्यमातून मागणी करतो की SC/ST प्रिव्हेन्शन ॲक्ट खाली या सगळ्यांची गुन्हा नोंद व्हावा आणि या ज्यांच्यावर गुन्हा नोंद होईल त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी त्या समस्त पोलिसांच्या वर, अशी मी या ठिकाणी मागणी करतो. त्यानंतर जे प्रशांत कुमार म्हणून त्या ठिकाणी एक अधिकारी आहेत, ते असं म्हणले की रेपच झाला नाही. खरं म्हणजे बलात्कारानंतर जो सॅम्पल घेण्यात येतो तो 11 दिवसानंतर सॅम्पल घेण्यात आला. सरकारची गाईडलाईन अशी म्हणते की विशाखा गाईडलाईन्स आहेत, त्या गाईडलाईन असं म्हणतात की 96 तासाच्या आत ते सॅम्पल कलेक्ट करायला पाहिजे होतं. तशा प्रकारचे सॅम्पल कलेक्ट करण्यात आलेले नाही आहेत. मारताना जे त्या मुलींनी स्टेटमेंट दिले ते ग्राह्य धरण्यात यावं अशी सुद्धा एक आमची मागणी आहे. कारण मारताना जर एखाद्या महिलेने अशा प्रकारचं स्टेटमेंट दिलं असेल की माझ्यावर गँगरेप झाला आहे, तर ती गोष्ट ग्राह्य धरून त्याच्या आधारावर केस बनली पाहिजे. पण तसं होताना दिसत नाहीये. सरकारकडनं या संदर्भात टाळाटाळ होताना दिसते. त्यानंतर सुरेंद्र सिंग नावाचे भाजपचे उत्तर प्रदेशचे आमदार आहेत, ते असं म्हणतात की संस्कार आवश्यक आहे बलात्कार रोखण्यासाठी. खरं म्हणजे भाजपच्या लोकांनी संस्काराच्या गप्पा मारणं ही किती मोठी एक भयंकर गोष्ट आहे, हे सगळ्यांनी आपण जाणून घेतलं पाहिजे. कारण ज्यांचे संस्कारच बलात्कार आहे त्यांनी बलात्काराच्या विषयी संस्काराची भाषा करू नये असं मला वाटतं. त्यानंतर ह्या सगळ्या संबंध प्रकरणामध्ये योगी सरकारची जी भूमिका आहे ती अतिशय दुटप्पीपणाची. एकीकडे मोदी सरकार जे आहे ते शिखर धवनच्या हाताला पोटाला दुखापत झाली तर ट्विट करता, अजून कुठल्याही प्रकारचं ट्विट सरकारकडनं किंवा मोदींकडनं आलेलं नाही आहे. उलट योगींकडनं एक ट्विट आलं आहे. त्या ट्विटमध्ये असं लिहिलं आहे की संबंधित पीडिताच्या जे घरची लोक आहेत त्यांची आम्ही नार्को टेस्ट करणार. म्हणजे ठरवण्याची वेळ आमच्यावर संपूर्ण भारतात आणून देऊ नका. तुम्ही नीट राहा, आम्हालाही नीट राहून द्या. या मागणीत मी या ठिकाणी थांबतो आणि आपले 2 शब्द संपवतो. जय मूलनिवासी, जय भारत. ओके ओके सर. ड्रॉवरमध्ये ते सेकंड इयरला एक्झाम डॉक्युमेंट
आज 8 अक्टूबर 2020 को बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा 550 जिले में और सारे भारत में आज बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वामन नेशनल साहब ने गुजरात में जो देवजी भाई महेश्वरी वो लड़ाई लड़ रहा था, तो उनकी 14 सितंबर को दिन दहाड़े जब उनके ऑफिस में जा रहा था तो पीछे से चाकू लेकर एक ब्राह्मण ने वार किया और उसकी गर्दन काट दी और उसकी हत्या कर दी उनके विरोध में। और 14 तारीख को उत्तर प्रदेश में हाथरस नाम का जो जिला है उधर अनुसूचित जाति की एक लड़की मनीषा सोलंकी वाल्मीकि, तो उनके ऊपर उत्तर प्रदेश के ठाकुरों ने सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार करके उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बाद उनकी जीभ काट डाली। जीभ काटने के बाद उनका पैर तोड़ दिया और उनकी हत्या कर दी। जब ये धीरेन्द्रों ने जब ऐसा किया तो उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो सरकार ने ये अपराधियों को तुरंत ही प्रभाव क्षेत्र उसको पकड़ना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए, उस पर FIR करनी चाहिए। लेकिन योगी सरकार ने ये बलात्कारियों को बचाने का काम किया। बचाने के साथ साथ पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर उन्होंने जो ये मनीषा वाल्मीकि जो हत्या की तो उनकी बॉडी को रात को 2:30 बजे एकांत में जाकर उनकी केरोसिन या पेट्रोल डालकर जलवंत पदार्थ डालकर उसको जला दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो सामूहिक बलात्कार किया मनीषा के ऊपर उनका जो एविडेंस था वो एविडेंस भी खत्म करने का काम ये अपराधियों ने तो किया। लेकिन ये अपराधियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी सरकार उन्होंने भी किया है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो देवजी भाई के हत्या की और गुजरात सरकार ने हत्यारों को बचाने के लिए 5-5 दिन लगा दिया और उत्तर प्रदेश सरकार योगी सरकार ने भी मनीषा वाल्मीकि के ऊपर सामूहिक बलात्कार किया और मार दिया और जला दिया और योगी सरकार ने उसको बचाया। तो ये लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। लेकिन जो गुजरात सरकार ने देवजी भाई की हत्या में शामिल लोगों को बचाने का काम किया, योगी सरकार ने मनीषा को मारने और बलात्कार करने में उसको बचाया, उसको भी मददगारी में फांसी पर उसको लटकाना चाहिए। ये हमारा विरोध है। दूसरी बात कि 29 सितंबर 2020 को बलरामपुर में भी अनुसूचित जाति के बेटी के ऊपर गैंगरेप किया और उसकी भी रेड की हत्या कर दी, उसको मौत के घाट उतारा गया। इसका भी हम विरोध करते हैं। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश बांद्रा में अनुसूचित जाति की बालिका ऊपर 22 अप्रैल 2020 को सुबह 4 बजे शिव नरेश नाम का यानी कि देवी दयाल कुंड ठाकुर नाम का एक किस्म ने उसको सुबह में उठा लिया और उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी में, उसकी बोलेरो गाड़ी में उसको बंद कर दिया, वहाँ से ले गया और ये बंद दरवाजे में उसके पर बलात्कार किया, यानी कि उसके पर लगातार उसके ऊपर रेप किया गया। और 3 महीने तक ये देवी दयाल जो ठाकुर था उन्होंने तो किया, लेकिन उनके साथ साथ जो उनके दोस्त थे उन्होंने भी उनके ऊपर सामूहिक बलात्कार किया। तो और पुलिस प्रशासन ने उसको बचाने का काम किया। ये दोनों को भी उसको कड़क मगड़क कार्यवाही करके उसके पर FIR करके उसको भी फांसी पर तख्ते में लटकाया जाए। 30 सितंबर 2020 को आजमगढ़ में 8 साल की बच्ची, मासूम बच्ची पर 20
20 साल के युवक के द्वारा रेप किया गया और बुलंदशहर में 14 साल की मासूम बच्ची पर रेप किया। अलीगढ़ में 3 साल की बच्ची के ऊपर रेप किया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक नाबालिग बच्ची से 3 लोगों द्वारा गैंग रेप किया गया। 14 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रेप चेहरा उछलकर उसकी हत्या कर दी। ये बहुत भयानक इस देश में हो रहा है। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश सरकार, ये गुजरात सरकार, कि भारत के हर राज्यों में जो बलात्कार हो रहा है, खून हो रहा है, और ये सरकार आरोपियों को बचा रही है, उसके ऊपर FIR नहीं करती, कार्रवाई नहीं करती, तो ये जो राज्य सरकार और भारत सरकार जो अभी राज कर रही है, ये जनता का वोट की उनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार है EVM के द्वारा आई है और EVM मशीन में गड़बड़ी करके आई है। इस देश में खून करेगा, बलात्कार करेगा, गैंगरेप करेगा, लूटपाट करेगा, डाकूगिरी करेगा, उसको कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि भारत में जो राज चल रहा है, सेंट्रल में जो राज चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में जो चल रहा है, ये सारी सरकार EVM मशीन के द्वारा बनाई हुई है। EVM मशीन में वो गड़बड़ी करके ये आई हुई सरकार है, इसलिए ये जनता के विरोध में है। इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा और उसके साथ जो सहयोगी संगठन है, सारे भारत में आज एक आक्रोश धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका सख्त तरीके से हम उसका विरोध करते हैं। दूसरी बात कि 14 सितंबर को 2020 को जब किसानों के विरोध में केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश जाहिर किया और 3 अध्यादेश के विरोध में जो किसानों ने उसके विरोध में प्रदर्शन किया, तो कई किसानों ऊपर जो फर्जी FIR की है वो FIR रद्द होनी चाहिए और उसकी वजह आरोप लगाया है वो वापस करना चाहिए और उसको निर्दोष घोषित करना चाहिए। तीसरी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 कोरोना वायरस में लॉकडाउन का आधार बनाकर देश की जनता को कहा घर के बाहर मत निकलो, लेकिन उन्होंने उनका ये कोविड-19 कोरोना वायरस का है EVM मशीन निष्पक्ष, न्यायिक और पारदर्शी चुनाव नहीं करता, फिर भी भारत के चुनाव आयोग ने EVM मशीन रखा है और इसकी वजह से केंद्र सरकार भी बनी है और भारत के हर राज्यों की सरकार EVM मशीन के द्वारा ही बनी है। इसलिए सारे देश में के लोगों के ऊपर, आदिवासी के लोगों के ऊपर, OBC के लोगों के ऊपर, लड़कियां के ऊपर, माँ बहन बेटियों के ऊपर जो रेप हो रहा है और सरकार कुछ नहीं करती, पुलिस प्रशासन भी उसको बचाने का काम कर रहे हैं, तो बहुजन क्रांति मोर्चा इसके विरोध में है और इस देश में संविधान के तौर पर राज चले और संविधान में दिए हैं अधिकार इस देश की जनता को मिले और इस देश की जनता समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय पर आधारित उसका समाज रहे, बनाए रखे और इसका राष्ट्र का निर्माण हो। इसलिए हम सारे भारत में आज बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो नाबालिग लड़कियों पर बलात्कार हो रहा है इसके विरोध में देवजी भाई महेश्वरी की जो वो हत्या की कानून का रक्षक था उसकी भी हत्या हो गई, तो उसके विरोध में हम आज सारे भारत में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारी इतनी ही बात है। जय मूलवासी। फांसी दो